یہ کہانی لے کر آئی ہوں عمر احمد کی لکھی دلچسپ کہانی آج کے بعد۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔ ڈرائنگ روم کی چھت پر رکھا اسپیکر فل آواز میں گونج رہا تھا۔ فہد پورے گھر کو روشنیوں سے دلہن کی طرح سجا رہا تھا۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی، ہر طرف رونق تھی۔ صابرہ بیگم مطمئن بھی تھی اور خوش بھی کہ آج عزت کے ساتھ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ احمد حسن اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع دیا۔ ننھی اجالا بھی چمکیلے چمکیلے کپڑے پہن کر اتراتی پھر رہی تھی۔ زارا بند کمرے میں اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی اور اپنے آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ جیون کون سا روپ ہے، جانے ابھی کتنے امتحان باقی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے زارا کہ تم کتنی پیاری ہو، اسد نے بڑے دل سے کہا تھا۔ کبھی خود کو میری نظر سے دیکھنا، پتہ چل جائے گا۔ اسے آئینے کے سامنے لے آیا تھا۔ اچھا اسد، اگر یہ تعریف میری کوئی اور مرد کرے تو؟ زارا نے شرارت سے کہا۔ کوئی کرے تو صحیح، اسے جان سے مار دوں گا، اسد نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ زارا ماضی یعنی گزرا ہوا زمانے سے حال میں آ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسد، کوئی اور مرد آ گیا ہے اسد، مجھے معاف کر دینا۔ زارا چپ چاپ بیٹھی زندگی کی بھول بھلیوں میں گم تھی۔ وہ ماضی یعنی اتیت کی پگڈنڈیوں پر دوڑ رہی تھی۔ احمد حسن اور صابرہ بیگم بہت نیک اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ زندگی میں خوشی اور سکون تھا۔ زارا کی دنیا میں آنے سے گھر کے سونے آنگن میں رونق ہو گئی، اور ویسے بھی زارا تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ زارا ماں باپ کی روشنی اور گھر کا چراغ بن گئی۔ ماں باپ نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ جب زارا 3 برس کی ہوئی تو اللہ نے صابرہ بیگم کو بیٹے کی ماں بنا دیا۔ اس کا نام انہوں نے ولید رکھا۔ ولید اور زارا پروان چڑھ رہے تھے۔ احمد حسن کے چھوٹے بھائی عمر حسن نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے اسد سے زارا کا رشتہ طے کر دیا۔ سبھی اس رشتے پر خوش تھے اور اسد تو دیوانہ تھا زارا کا۔ سورج ڈوبتا رہا، نکلتا رہا، گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے بھاگتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور زارا اور اسد نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت پروان چڑھتی گئی۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ زارا مایوں بیٹھ چکی تھی۔ اسد کے نام کی مہندی بڑے دل سے اس نے اپنے ہاتھوں پر لگائی تھی۔ ارے ارے، یہ آنکھوں میں پانی کیوں؟ کیا ابھی رخصتی ہو رہی ہے؟ بس بس
रोना नहीं बेटा, और तुम कौन सा ब्याह कर दूर जा रही हो? ये थोड़ी दूर तो ससुराल है। साबिरा बेगम ने ज़ारा को खुद से अलग करके आंसू साफ किए। और फिर तुम्हारी चच्ची तो माँ से बढ़कर तुम्हें प्यार करती है, वो भी तुम्हें मेरी कमी नहीं महसूस होने देंगी। साबिरा बेगम ने भीगी पलकों के साथ कहा। अपनी होने वाली सास के काबिल रश्क प्यार पर वो हमेशा नाज करती थी। ओहो, बड़ी फिल्मी सिचुएशन चल रही है, साहिल ने माँ बेटी के लाड़ प्यार को देखकर कहा। हाँ, तो तुम क्यों जल रहे हो? ज़ारा ने फौरन जवाब दिया। अरे मैं क्यों जलूंगा, मैं तो देख रहा था कि कैसे मेरी भोली भाली खाला को तुम अपने मगरमच्छ के आंसू से बेवकूफ बना रही हो, जबकि दिल में असद से शादी के लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा, अपनी बकवास अपने पास रखो, ज़ारा ने उसे डांट दिया। साहिल ज़ारा का खालाजाद भी था और बहुत अच्छा इंसान और दोस्त भी। साहिल उन लोगों में से था जिनके साथ वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, ज़ारा को शिद्दत से माँ बाप की दूरी का एहसास हो रहा था और उस चीज़ की तरफ से दिल मुतमईन था और खुश भी कि असद उसे बहुत चाहता है। उसके ससुराल वाले उसे बहुत चाहते हैं, वो बात उसका सेरों खून बढ़ा देती थी। साहिल ने घर के सारे इंतजाम संभाल रखे थे। वलीद, जो ज़ारा का भाई था, उसको कहीं ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेला है। उसने मिलकर सब छोटे बड़े काम किए। असद, जो सारा का भाई, फहद सारा का भाई था, उसने भी कसीम होने का पूरा हक अदा किया। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। ज़ारा लाल कामदार लहंगे में बिल्कुल हूर लग रही थी। असद भी किसी से कम नहीं लग रहा था। ज़ारा हजारों अरमान लिए रुखसत होकर चचा उमर हसन के घर आ गई। वहाँ उसे उसकी सोच से बढ़कर प्यार मिल रहा था। वक्त को तो जैसे पर लग गए थे, इतनी तेजी से गुजर रहा था कि पता नहीं चल रहा था। असद तो दीवाना था। ज़ारा उसकी मोहब्बत पर निहाल हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि मोहब्बत की खूबसूरत तितलियां उसकी चारों तरफ डांस कर रही हैं। मोहब्बत देखकर उसकी लोग रक्श करते तो उसे खुद पर नाज होता। प्यार के गुलाबी फूल उसके चारों तरफ बिखरे होते। ऐसा लगता था कि ज़मीन उसके साथ झूम रही है, आसमान उसके साथ गुनगुना रहा है। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। उसकी शादी को 2 माह गुजर गए थे। असद की मोहब्बत वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि 2 महीने गुजर गए। ज़ारा कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे इतना शदीद चक्कर आया कि हाथ में पकड़ा गुलदान उसके हाथ से छूट गया। अगर वो करीब रखी मेज़ को न पकड़ती तो गिर जाती। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसने उठकर टूटे टुकड़े उठाए, सफाई की और लेट गई। उसे बुखार भी हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। सोचा बुआ का अर्ज देकर चाय का कह दूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर याद आया कि बुआ तो आज आई ही नहीं, सो लेटी रही। इतने में चची जान अंदर आ गई। ज़ारा, नजमा ने धीरे से पुकारा। जी चची जान, ज़ारा ने निहायत अदब से कहा।
देखो ज़ारा, ये घर तुम्हारा है, अब तुम थोड़ा बहुत काम काज किया करो। किचन में आओ, इसे संभालो, घर की देखभाल करो। ये सब तुम्हारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। आज शाम का खाना तुम बनाओ ज़ारा। तुम्हें पता है ना कि अब्बू आज नहीं आए हैं और रोशनी पढ़ाई में बिजी रहती है, फिर भी वो छोटे मोटे काम करती है। तुम समझ रही हो ना? जी चची जान, ज़ारा ने धीरे से जवाब दिया। नजमा तो चली गई, मगर ज़ारा सोचती रह गई कि चची जान का ये बदला हुआ रूप क्यों है। चची जान के इस बदले हुए लहजे और बदले हुए रूप के बारे में उसने कई बार सोचा कि असद से बात करे, पर हर बार ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं माँ बेटे के बीच फर्क ना आ जाए। ज़ारा सुबह से तबीयत खराबी के बावजूद काम में जुटी पड़ी थी। वो सब कामों से फारिग होकर कमरे में आई तो असद उसका मुंतजिर था। उसका बदन थकन से चूर था। उसकी कमजोरी और थकन की गवाही उसकी आंखें दे रही थीं। कहीं असद परेशान न हो जाए इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजा रखी थी। अगर फारिग हो गई हो तो इस नाचीज को भी टाइम दे दो, असद ने रोमांटिक अंदाज में कहा। ज़ारा मुस्कुरा कर चुप हो गई। तुम्हें सबकी खुशी का एहसास है सिवाय मेरे, असद के लहजे में शिकवा था। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ज़ारा समझ चुकी थी कि असद नाराज हो रहा है, इसीलिए मुस्कुराकर कहा, अच्छा मेरी बात सुनो। असद उससे अपना मूड खराब नहीं रख सकता था। असद ने ज़ारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अगले ही लम्हे उसे जैसे करंट लगा हो। उसने ज़ारा का हाथ छोड़ दिया। ज़ारा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम काम में लगी रही, मुझे बताया तक नहीं। उठो उठो, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, असद ने फिक्रमंद होते हुए जल्दबाजी से कहा। नहीं असद, मैं ठीक हूँ, अभी दवा ली है मैंने, ज़ारा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। जब तुम्हें बुखार था तो तुमने काम क्यों किया, मम्मा को नहीं बताया? और बुआ कहाँ है जो रोज तुम काम करती हो? डांट दिया है, हटा दिया है। पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है। बेशक तुमने अब तक मुझसे कोई शिकवा नहीं किया है, पर मुझे पता है मम्मा का रवैया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जाने मम्मा को क्या हो गया है। उनका बदला हुआ रूप मेरे लिए भी हैरान करने वाली बात है। असद धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। ज़ारा हैरान भी थी और खुश भी कि असद को खुद ही सब पता है। आज ज़ारा वक्त से बहुत पहले ही उठ गई थी। वो रात भर ठीक से नहीं सो सकी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी। असद उठा तो उसे ज़ारा कुछ परेशान सी लगी। क्या बात है ज़ारा, तुम उदास परेशान क्यों हो? असद ने पास से गुजरती ज़ारा का हाथ पकड़कर पूछा। कुछ नहीं असद, बस तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। एक अनजाना सा खौफ है, जैसे कुछ होने वाला है। तुम तो ऐसे ही मेरी जान फिक्रमंद हो रही हो। कुछ नहीं होता, ऐसी हालत में ऐसा हो ही जाता है। असद के यूं कहने पर ज़ारा झेम गई। उसकी इस कैफियत से मज़ा लेने लगा। उसे बेइख्तियार उस पर प्यार आ गया। असद उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाते वक्त तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ा जाऊंगा और वापसी पर लेता आऊंगा। घर जाने का सुनकर
ज़ारा खुश हो गई, और वैसे भी लड़कियां तो मायके जाने का बहाना ढूंढती हैं। असद गेट पर ही ज़ारा को छोड़कर चला गया। ज़ारा ने किचन में काम करती माँ की आंखों पर हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अरे ज़ारा, तुम कब आई? तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल गई हो। देश में रहते हुए भी परदेसियों जैसा हाल है तुम्हारा। साबिरा बेगम ने उसे गले लगाते हुए शिकवा किया। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, आप बैठिए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। और ये वलीद कहाँ है? नाश्ता बाद में बनाना, पहले वलीद को जगा कर आओ। ज़ारा तकरीबन भागते हुए वलीद के कमरे में पहुंची। उफ तौबा वलीद, अभी तक सो रहे हो? और देखो तो सूरज कहाँ तक आ गया है। ऊपर से कमरे में कितना अंधेरा कर रखा है। ज़ारा ने कमरे की खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए कहा। वलीद कमरे में ज़ारा की आवाज़ सुनकर खुशी से उठ गया। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। सब मिलकर आज नाश्ता करेंगे। ज़ारा ने खुद ही प्रोग्राम तरतीब दिया। नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूँ। इतने दिनों बाद तो तुम आई हो, बैठकर बातें करेंगे। मैं नाश्ता बाजार से लेकर आता हूँ। ज़ारा को देखकर जो खुशी वलीद के चेहरे पर आई थी, उसके लहजे और चेहरे में से जाहिर थी। ज़ारा नीचे आकर माँ बाप के साथ बातों में लग गई और वलीद नाश्ता लेने चला गया। बहुत देर होने के बाद साबिरा बोली, वलीद अभी तक नहीं आया, देर कर दी आने में। हाँ, देर तो वाकई हो गई है, आ जाएगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। इतने में गेट पर बेल हुई। लो मम्मा, आ गया वलीद। आप फिक्रमंद हो रही थी। बाबा जानी, आप गेट खोलें, मैं बर्तन वगैरह निकालती हूँ। गेट खोला तो वाकई वलीद था, पर उसे लोगों ने कंधे पर उठा रखा था। लोगों ने बताया कि उसका जबरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा। शोर की आवाज सुनकर साबिरा बेगम और ज़ारा भी गेट पर आ गई और वो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहे हों। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़ारा अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। इसकी वजह से वो नाश्ता लेने गया। काश वो न जाता। रो रो कर उसका बुरा हाल था कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। उम्र के से ऊपर से चची जान की बातों ने उसके दुख को और बढ़ा दिया। ये कहकर ज़ारा ने सुबह सुबह आते ही अपनी नहुसत भाई पर डाल दी और वो दुनिया से चला गया। जिंदगी का ये कौन सा दुख था उसे समझ नहीं आ रहा था। ज़ारा हर वक्त वलीद को याद करके रोती रहती। साबिरा बेगम बेटी की मौत का सदमा लिए अंदर ही अंदर घुल रही थी। जवान बेटे की मैयत को कंधा देने वाले बाप के दुख और तकलीफ का अंदाजा उनके चेहरे को देखकर लगाया जा सकता था। वलीद की मौत का दुख इतना ज्यादा था कि ज़ारा अपने आने वाले बच्चे की खुशी भी भूल गई, जबकि उसका छठा महीना शुरू हो चुका था। वलीद को दुनिया छोड़े 3 महीने बीत गए थे, पर उन सबको ऐसा लगता कि तूफान कल ही गुजरा है। ऊपर से चची जान का सख्त लहजा, जली कटी बातें
اسے اور دکھی کر دیتی، اسے زخم دیتی اور ان زخموں پر اسد اپنی محبت کا مرہم لگاتا، اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ کسی کے چلے جانے سے وقت کا پہیہ تھوڑی رک جاتا ہے، زندگی کی گاڑی تو اسی طرح رواں دواں رہتی ہے۔ پر یوں اچانک کسی اپنے بہت خاص کے جانے سے دل کے ایک کونے میں، ذہن کے ایک حصے میں، جسم کے ایک علاقے میں ایک خلا سی ابھر آتی ہے جسے لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی نہیں بھر سکتا۔ اسد کی محبت زارا کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا، اسے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا، لیکن چچی جان آنے والے ننھے مہمان کی خوشی بھی ہضم نہ کر سکی۔ شاید وہ بیٹی کی محبت کو بانٹ نہیں پائیں۔ ان کی جلی کٹی باتیں زارا کو بہت دکھ دیتی تھیں، پر اسد کی محبت اسے پھر سے خوش کر دیتی۔ اسد، جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت پاس آ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، زارا نے پریشانی سے کہا۔ ڈر اور خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر آئی تھیں۔ ارے پاگل، تم تو ایسے ہی ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اسد نے زارا کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا نام پسند ہے؟ اسد نے اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے دوسری بات شروع کر دی۔ جو نام آپ کو پسند ہے وہی نام رکھیں گے، زارا نے خوشی سے کہا۔ تو پھر مجھے تو اجالا نام پسند ہے، اچھا ہے نا؟ اجالا، ہماری زندگیوں کا اجالا، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ پھر اسد اور زارا دیر رات تک باتیں کرتے رہے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، محبت کی گلابی تتلیاں ان کے پاس منڈلا رہی تھی۔ اسد نے بہت پیار سے زارا کو اپنے بازو پر سلایا تھا۔ زارا اتنی سکون سے سوئی کہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کی نماز قضا ہونے سے تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا جب زارا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جلدی جلدی وضو کیا، نماز ادا کی اور نہایت دل سے دعا کی۔ کچن میں جا کر اپنے اور اسد کے لیے چائے بنا کر کمرے میں آ گئی اور اسد کو جگایا، مگر اسد کو ہاتھ لگاتے ہی زور کا جھٹکا لگا۔ اسد کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ زارا کے ساتھ بے وفائی کر چکا تھا، اسے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے بدائی لے چکا تھا۔ جس نے زندگی ساتھ گزارنے کے وعدے کیے تھے، سب برف کے گھڑندے کی طرح بہہ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، باری باری سب کو آوازیں دے رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں گھر کے سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اسد کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، مگر سب بے فائدہ۔ پتہ چلا کہ کچھ گھنٹے پہلے اسے شدید دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی یوں اپنا بھیانک روپ لے کر سامنے آئے گی۔ اسد سفید لباس پہنے اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جانے کے لیے تیار تھا۔ چچی جان کا رو رو کر برا حال تھا، زارا کا حال بھی بہت برا تھا، اور اسے دکھ کا جھٹکا اس وقت لگا جب چچی جان نے سب لوگوں کی موجودگی میں کہا، تو منوس ہے، پہلے اپنے بھائی کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کو کھا گئی، تو بھی منوس ہے اور تیرا یہ بچہ بھی،
جا دفع ہو جا، نکل جا اس گھر سے، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زارا بت بنی یہ سب باتیں سن رہی تھی، آنکھوں سے پانی مسلسل بہ رہا تھا۔ جس شخص کے ساتھ تیرا رشتہ تھا، جب وہی نہیں رہا، اب اسے ہی تو کھا گئی، تو تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈارن، دفع ہو جا، کبھی مت آنا میرے سامنے، جا، نکل جا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ تنہا چمکتے چاند کو دیکھ کر اسے تنہائی کا احساس اور بھی زیادہ ہونے لگا۔ اسے اپنے بیتے پل یاد آ رہے تھے، اسد کی دیوانگی، اس کی محبت، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آنکھوں سے ساون اترنے لگا، دل کی زمین نمکین پانی سے سیراب ہو رہی تھی۔ زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی پر زندہ نہیں تھی، وہ جینے کے طور طریقے ہی بھول گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں جینے کی خواہش اس وقت نظر آئی جب اللہ پاک نے اسے ماں جیسے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ وہ خوش تھی پر اسے اسد کی کمی بے تحاشا محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے گود میں لے کر بوسہ لیا، دھیرے سے اس کے نرم نرم گالوں کو چھوا تو اسے احساس ہوا، یہ اجالا ہے، میری زندگی کا اجالا۔ کوئی بہت پاس سے بولا تھا۔ وہ خوش تھی پر معصوم اجالا کی آمد بھی چچی جان کا غصہ نہ کم کر سکی۔ نہ وہ آئیں، نہ انہوں نے اجالا کو دیکھا، نہ پیار کیا۔ اجالا کے آنے سے زارا کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کی زندگی کا ہر نقطہ اجالا پر آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ سارا دن اجالا کے چکر میں لگی رہتی۔ صابرہ بیگم کو اس بات سے بے فکری ہو گئی تھی کہ اب زارا پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی۔ اجالا پورے گھر کا اجالا بن گئی تھی۔ زارا کے ماں باپ کو تو جیسے کھلونا مل گیا تھا کہ اجالا زارا سے زیادہ صابرہ کی بیٹی ہے۔ اس دوران زارا کے لیے بے شمار اچھے رشتے آئے مگر زارا نہ مانی۔ اس کا کہنا تھا، کون اجالا کو سگے باپ کا پیار دے گا؟ زارا نے اپنا اور بیٹی کا بوجھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو مانتی تھی کہ آج کو ماں باپ حیات ہیں، اگر اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن شہریار آ جاتا تھا۔ اس کے آ جانے سے گھر میں اچھی رونق آ جاتی تھی۔ خالہ اور باقی لوگ بھی چکر لگا لیتے تھے۔ اجالا بھی ساحل اور خالہ سے مانوس ہو گئی تھی، ان کے ساتھ کھیل کر خوش ہوتی تھی، اور فہد سے تو اجالا کی بہت بنتی تھی، اور فہد بھی جان چھڑکتا تھا اس پر۔ ارے زارا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ صابرہ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اندر چلی آئیں۔ بس مما، ذرا یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لوں پھر سوتی ہوں، زارا نے تیزی سے قلم چلاتے ہوئے کہا۔ زارا، ماما نے اسے دھیرے سے پکارا۔ جی مما، زارا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ زارا، تم حقیقت پسند لڑکی ہو، جو تمہارے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کبھی یوں بھری جوانی میں کسی کے ساتھ ہو۔ اسد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم ایک دم سے ٹوٹ گئی، پر تم نے بغیر کسی سہارے کے خود کو سنبھالا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، حوصلہ دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ مرد عورت کی زندگی میں کتنا
मजबूत सहारा होता है। मर्द के दम से ही औरत की बादशाही होती है। हम आज हैं, क्या पता कल हो ना हो। अगर वलीद जिंदा होता तो मैं तुम्हें कभी दूसरी शादी के लिए ना कहती, या अगर तुम्हारा उजाला की जगह कोई बेटा होता तो भी मैं तुम्हें दूसरी शादी के लिए फोर्स ना करती। पर अब सिचुएशन दूसरी है। मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी के लिए रजामंदी दे दो। अब तो उजाला भी बड़ी हो रही है। तुमसे ज्यादा हमें दुख है ये सब करने का, वरना दुनिया के कौन से माँ बाप हंसी खुशी से अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए राजी होते हैं। तुम्हें यूं देखकर हमारा दिल जलता है। तुम्हारे बाबा अंदर ही अंदर भूलने लगे हैं। औलाद के सुख की किसे ख्वाहिश नहीं होती। साबिरा बेगम भीगे लहजे में बोल रही थी। ज़ारा खामोश बैठी बेआवाज रो रही थी। आंसू दानों की तरह गिर रहे थे। ज़ारा माँ के गले लगकर खूब रोई और पहली बार अपनी जुबान से शिकवा किया, मम्मा कैसा नसीब लिखवा कर लाई हूँ मैं मम्मा। माँ के मनाने पर और माँ बाप की परेशानियों को देखते हुए उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी। पर उसका दिल मुतमईन नहीं था। जाने कौन मर्द अब मेरी जिंदगी का मालिक बनेगा, जाने वो कौन होगा, कैसा होगा, मेरी उजाला को अपना समझेगा कि नहीं। हजार खौफ, खदशे और सवाल उसके जहन में मचल रहे थे। बज़ाहिर उसकी नजरें तो किताब पर थी, पर जहन कहीं और उलझा था। काश वलीद जिंदा होता तो दूसरी शादी के लिए वो कभी हाँ न करती। ज़ारा खुद से बोली थी, कितने दिन हो गए साहिल भी नहीं आया। अच्छी जाब लगी, हमें ही भूल गया। आने दो उसे जरा, अच्छी खबर लूंगी। फहद और खाला का चक्कर भी नहीं लगा कई दिन से। पहले उन्हें फोन करके पूछूं सब खैर है ना। और ज़ारा उठकर उनका नंबर डायल करने लगी। ज़ारा नंबर ही डायल कर रही थी कि इतने में फहद और खाला अंदर दाखिल हुए। बस देखो, तुमने दिल से याद किया और हम चले आए। ज़ारा को गले लगाते हुए कहा, मेरी उजाला कहाँ है? वो तो मुझसे नाराज हो रही होगी। हाँ, तुम्हें याद करके अभी सोई है, ज़ारा ने बताया। अच्छा, आप सब लोग बैठे, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, ज़ारा कहकर किचन में चली गई, जबकि खाला उसकी मम्मा के पास चली आई। साबिरा, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे क्या? साबिरा ने सवालिया नजरों से देखते हुए चौंक कर सवाल किया। साबिरा, तुम्हें पता है कि मुझे ज़ारा से कितना प्यार है? अपनी सगी औलाद से बढ़कर। मेरी तो जान ही ज़ारा में अटकी हुई है। तुम ज़ारा को मुझे दे दो हमेशा के लिए। मैं तुमसे उसे मांगने आई हूँ, प्लीज इनकार मत करना। एक बार बचपन में तुमने और ज़ारा के बाबा ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि हम तो असद के माँ बाप को हाँ कर चुके हैं। आज मायूस मत करना साबिरा। नहीं, मुझे तो खुशी है कि ज़ारा ब्याह कर अपने ही घर जाएगी। उसके पास जो माँ से बढ़कर उसे प्यार करने वाली सास है,
पर तुम एक बार साहिल से पूछ लो, फिर हम मिल बैठकर निकाह की तैयारी करें। वो तो हथेली पर सरसों जमाने बैठी थी। ज़ारा बहुत सारे वसवसों से बाहर आ गई थी। साहिल उसे शुरू से पसंद था, पर इस लिहाज से नहीं कि उसे अपना ले या उसका शरीक सफ़र बने। साहिल एक अच्छा इंसान और खूबसूरत दिल रखने वाला बंदा था। असद की साहिल से बहुत बनती थी, पर उसने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो दूसरी शादी के लिए रजामंदी दे चुकी थी, मगर अब साहिल का रिश्ता आने से उसके खदशात खत्म हो गए थे। उसे जो डर हर वक्त सताता था कि उजाला का क्या बनेगा, तो वो डर खत्म हो गया था। बाकी सारा मामला उसने अल्लाह पाक पर छोड़ दिया था। ज़ारा के साहिल से रिश्ते की खबर चची जान पर बिजली की तरह गिरी थी। वो तो साहिल के लिए कुछ और ही सोचे बैठी थी। उनका ख्याल था कि साहिल उनका दामाद बने। ये ख्वाहिश जो बिन पूरे हुए ही दम तोड़ गई, जाने वो कब से इस ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठी थी। बस मुनासिब वक्त के इंतज़ार में थी, पर क्या खबर थी कि वक्त आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब तो ज़ारा से उन्हें और भी नफरत होने लगी थी। खुशियाँ अपना दामन बिछाए ज़ारा की मुंतज़िर थी। उसका दिल मुतमईन था, पर उसकी याद आज भी उसके सीने में दिल बनकर धड़क रही थी। किसी ने एक बार उसे कहा था कि खुशियाँ दस्तक दें तो देर किए बिना दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि अगर खुशियाँ रूठ जाएं तो दोबारा नहीं आती, बस पछतावा रह जाता है। ज़ारा ने देर तक फैले नीले आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। शायद आने वाले वक्त में वो प्यार और हुकूक साहिल को न दे पाऊँ जो उसका हक है या उसकी जो ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अपना दिल, प्यार और सारे हुकूक असद को दे चुकी। अगर वलीद भी जिंदा होता तो मैं कभी दूसरी शादी न करती। आंखों में मोती चमकने लगे थे और फिर आंखों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गई। उसको पता ही नहीं चला कि कब साहिल आकर उसके पास बैठ गया। साहिल ने उन चमकते मोतियों को अपने पोरों पर चुन लिया। आज के बाद कोई बात न होने देंगे, हम तेरी आंख से बरसात न होने देंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुन रहे थे उमर अहमद की लिखी कहानी आज के बाद।